شام کی بجائے سپہر ہی کو شام کے کھانے کا بندوبست ہونے لگا تھا۔ وسیع بیٹھک کے صحن میں الاؤ جلا کر وہ سالم دمبے روسٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مقامی طور پر کئی مقامی پکوان تیار کیے جا رہے تھے، جن میں کابلی پلاؤ اور افغانی کباب وغیرہ شامل تھے۔ اسی دوران نوشاد گل اور گلریز بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں قبیل خان کے لشکر کا حصہ رہ چکے تھے۔ قبیل خان اور جہانداد خان کے قتل کے بعد انہوں نے صنوبر خان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ البتہ صنوبر خان کی موت کے بعد علام خیل کا کوئی ایسا سردار نہیں بچا تھا جس کے پاس یہ کام کر سکتے۔ بس کسی اور سردار کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنے کی بجائے یہ گاؤں واپس لوٹ آئے تھے۔ دونوں میرے نام اور کام سے اچھی طرح واقف تھے۔ خوشحال خان کے گاؤں میں ہونے والے جرگے میں گلریز مجھے دیکھ چکا تھا، جبکہ نوشاد گل اس وقت قبیل خان کی بیٹھک میں موجود تھا جب میں نے پلوشہ کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت نوشاد گل بڑی مشکل سے پلوشہ کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکا تھا۔ دونوں مجھ سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے ہمراہ چند اور جوان بھی میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ان کے انداز میں مجھے ایک عقیدت اور مروبیت نظر آ رہی تھی۔ یوں بھی قبائلی علاقے میں اچھے نشانے باز کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی لڑائی کا دار و مدار ہی ہتھیار کے استعمال پر ہے۔ تھوڑی دیر میں تمام بے جھجک ہو کر مجھ سے گپ شپ کر رہے تھے۔ سیلاب خان کی آمد کے بعد چند منچلوں نے میرا نشانہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس کی تائید تمام حاضرین محفل کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی خامخواہ کی بہانے بازی سے گریز کرتے ہوئے نوشاد گل کے ہاتھ سے سٹائر سنائپر رائفل لی۔ نوشاد گل کو میں نے بیٹھک کی ایک دیوار کے ساتھ ایک سفید چادر لٹکانے کا کہا۔ اسبات میں سر ہلا کر اس نے ایک آدمی سے چادر لے کر دیوار پر لٹکا دی۔ دوسری دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے 20 گولیاں تیز رفتاری سے فائر کی۔ جو ہی میں ایک میگزین خالی کرتا، نوشاد گل مجھے بھری ہوئی میگزین دیتا۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اتنی چوڑی چادر پر نشانہ کر کے میں کون سی مہارت کا ثبوت دے رہا ہوں، لیکن کسی نے زبان سے کہا نہیں۔ فائر ختم ہوتے ہی میں نے تمام کو کہا کہ وہ قریب جا کر چادر کو دیکھ لیں۔ چادر کے قریب جا کر وہ حیرانی سے چیخ پڑے تھے، کیونکہ چادر پر میں گولیوں کے ذریعے انگریزی زبان میں SS لکھا تھا، اور ایسا کرنا کسی عام شخص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ مظاہرہ دیکھ کر سیلاب خان نے بے ساختہ کہا، اب تو لگتا ہے نوشاد گل آپ کے متعلق کچھ بتا ہی نہیں پایا تھا۔ باقی لوگ بھی پہلے سے زیادہ مروب نظر آ رہے تھے، جبکہ میں خود کو خاصا خفیف محسوس کر رہا تھا۔ بار بار تعریفی کلمات سن کر مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی میری پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا تو کوئی تعریف میں رتب اللسان تھا، اور کوئی میرا شاگرد بننے پر تلا ہوا تھا۔ شام کی نماز کے بعد کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد محفل موسیقی تھی۔ رباب اور گھڑے کے ملاپ نے عجیب سما باندھ دیا تھا۔ مقامی گلوکار کی آواز خاصی دلکش تھی۔ پشتو ٹپے سنتے ہی پلوشہ تھم سے میرے خیالوں میں آ کودی۔ پشتو ساز پر تو وہ یوں بھی اتنا خوبصورت اور دلکش رقص کرتی۔ رات گئے تک پروگرام جاری رہا، اور پھر میرے آرام کرنے کی درخواست پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ گھروں کو لوٹتے وقت کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ نوشاد گل جب جانے لگا تو اسے میں نے روک لیا۔ تمام کے رخصت ہونے کے بعد میرے پاس سیلاب خان اور نوشاد گل ہی رہ گئے تھے۔ میں سردار سیلاب خان کو بولا، سردار اگر اجازت ہو تو میں نے نوشاد گل سے چند ضروری باتیں پوچھنی ہیں۔ جہاں دیدہ سردار فوراً میرے مطمع نظر تک پہنچ گیا تھا، بولا ہاں کیوں نہیں، اور الوداعی مصافحہ کر کے وہ بھی چلا گیا۔ میں نے کہا، نوشاد گل کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو کچھ پوچھوں گا آپ اس کا صحیح جواب دیں گے؟ وہ بولا، ذیشان بھائی، سردار قبیل خان اور اس کے بعد بننے والے سرداروں میں سے کوئی بھی نہ تو میرا رشتہ دار تھا اور نہ کسی سے میری جذباتی وابستگی تھی۔ میرا ان سے تعلق فقط مالک اور ملازم کا تھا، اس لیے آپ نے جو پوچھنا ہے بے جھجک ہو کر پوچھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوا تو کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ وہ میرے اصل نام سے واقف تھا۔ میں نے کہا، ایلبرٹ بروک، ٹریسی والکر اور کرنل کولن فیلڈ میں سے کسی کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، تینوں کو جانتا ہوں۔ میں نے پرجوش لہجے میں پوچھا، یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک بار صنوبر خان کے ساتھ ایلبرٹ بروک اور کالی لڑکی کو غزنی میں پہنچایا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ مستقل وہیں ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں غزنی تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ وہ بولا، یہاں سے آپ کو مرنہ گر جانا ہوگا، وہاں سے پکتیکا نزدیک ہے، اس کے بعد زرغون شہر آئے گا، اس کے بعد پناہ، اور اس سے آگے قرہ باغ، وہاں سے غزنی کی گاڑی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر زرغون سے آپ سیدھا ابند کا رخ کریں تو وہاں سے بھی غزنی جا سکتے ہیں۔ یہ میں سڑک کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پکتیکا سے سیدھا غزنی کا رخ کریں تو یہ راستہ مختصر ہے، مگر بڑی سڑک میسر نہیں ہے۔ اس طرف آپ کو کچے پکے رستوں اور پہاڑی علاقوں کو عبور کرنا پڑے گا۔ میں نے مزید معلومات دریافت کی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ تمام رات میں نے آگے کی حکمت عملی بناتے گزاری۔ غزنی ایک بڑا شہر تھا اور وہاں امریکن فوج نے اپنی چھاؤنی بنائی ہوئی تھی۔ اس حساس علاقے میں گھسنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے کسی ایسے منصوبے کی ضرورت تھی جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہوتی، مگر ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا۔ عملی طور پر اگر یہ ناممکن نہیں تو بہت زیادہ دشوار ضرور تھا۔ سب سے بڑھ کر میں نے کسی کو جان سے نہیں مارنا تھا کہ دور سے گولی چلا کر اپنا کام کر لیتا۔ مجھے تو ان کے کیمپ میں گھس کر اپنی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈنا تھا۔
ये सरासर जासूसों वाला काम था। गो एक स्नाइपर को वक्त पड़ने पर हर काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी निशानेबाजी और मार धाड़ से जासूसी एक अलग काम है। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने सैलाब खान को कहकर कागज पेन मंगवाया और नौशाद गुल से सुनी हुई मालूमात को एक नक्शे की सूरत में कागज पर उतार लिया। रास्ते के खाने पीने की चीजें सफरी थैले में डालकर मैं जाने के लिए तैयार था। उस वक्त नौशाद गुल और चंद और जवान भी पहुंच गए थे। मैं तमाम की मैयत में चलता हुआ गजनी खेल से बाहर निकला और उनसे अलविदाई मुआनिका करके गजनी खेल से गजनी की तरफ रवाना हो गया। खान कले को मैं पीछे छोड़ आया था। अब मरनाहगर से होते हुए मैंने पक्तिका जाना था। मरनाहगर से पक्तिका के लिए गाड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी में सफर करने में ये कबाहत थी कि मैं क्लैशनकोफ साथ नहीं ले जा सकता था। गजनी खेल से शुमाल की जानिब एक चौड़े नाले में किलोमीटर 1.5 चलने के बाद मुझे मगरिब की तरफ मुड़ना था। मौसम तकरीबन साफ था। शुमाली जानिब हल्के हल्के बादल नजर आ रहे थे और बज़ाहिर बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन उसके साथ मैं इस बात से भी वाकिफ था कि बादलों को इकट्ठा होने में देर नहीं लगती। इस मौसम के हाथों में एक बार पहले भी मरते मरते बचा था। अब मैं इस मौसम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकता था। मेरा पुख्ता इरादा था कि मौसम के जरा सा भी खराब होने पर मैं बगैर सफर जारी रखे किसी पनाहगाह में घुसूंगा। सर्दी काफी बढ़ गई थी। दिसंबर शुरू होने वाला था और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पहाड़ी इलाके में मजीद बर्फबारी होने का इम्कान था। नाला मोड़ मुड़ते ही हल्की हल्की उतराई शुरू हो गई थी। मोड़ मुड़कर मैं चंद कदम ही ले पाया था कि अचानक किसी ने जोरदार आवाज में ललकार कर मुझे रुकने को कहा। एकदम मेरे कदम रुक गए। आवाज की समत देखने पर 4 आदमी झाड़ियों के झुंड से बरामद होते दिखाई दिए। चारों मुसल्लह थे। यकीनन वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे रोक रहे थे। एक करख्त शक्ल के लंबे आदमी ने दूर ही से हुक्म जारी किया, हथियार नीचे फेंक दो। मैंने कहा, शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। इस मर्तबा उसने क्लैशनकोफ मेरी जानिब तान कर दुरुस्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो और हथियार नीचे फेंको। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने क्लैशनकोफ नीचे रखी। उसने हथियार से दूर हो जाने का इशारा किया, पीछे हो जाओ। मैं चंद कदम लेकर हथियार से दूर हो गया। उन चारों के चेहरों पर छाए तासुरात मुझे हैरान किए हुए थे। लंबे आदमी ने करीब पहुंचकर बगैर शनाख्त पूछे गिरबान से पकड़कर झटका देते हुए मुझे दूर फेंका। तुम्हारे साथ काफी हिसाब किताब बाकी है बेगैरत शख्स। उसके लहजे में शामिल गैज़ गज़ब मुझे हैरान किए दे रहा था। उसके अंदाज पर मुझे भी इंतहाई गुस्सा आ गया था, लेकिन अपने जानिब उठी 3 क्लैशनकोफों की मौजूदगी में मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। गुस्से का कड़वा घूंट भरते हुए मैंने हद्दुल वसा नर्म लहजे में कहा, देखो भाई, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं मुसाफिर हूँ और इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं देखा। वो बोला, तुम मुसाफिर थे, लेकिन गजनी खेल कबीले के साथ मिलकर तुमने हमारे कितने बंदों को नाकारा किया, इस बात से तुम वाकिफ होगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि गजनी खेल में हमारा कोई हमदर्द मौजूद नहीं? उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में साएं साएं होने लगी। शायद वो शलूबर कबीले से ताल्लुक रखते थे। गजनी खेल कबीले के किसी गद्दार ने मेरा मुकम्मल राज फाश कर दिया था, यहाँ तक कि उसने शलूबर कबीले वालों को मेरे जाने के रास्ते के बारे में भी बता दिया था। और यकीनन शलूबर कबीले के ये आदमी काफी देर से मेरी घात में बैठे हुए थे। गजनी खेल कबीले के साथ करने वाली हमदर्दी मुझे रास नहीं आई थी। ऐसी हालत में तो सैलाब खान के आदमी भी मेरी मदद को नहीं पहुंच सकते थे कि उन्हें इस बाबत कुछ मालूम ही नहीं था। मैं बुरी तरह फंस गया था। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने तंजिया लहजे में कहा, अब तो बोलती बंद हो गई। जमीन से उठते हुए मैंने अपने कंधों से सफरी थैले की डोरियां निकाली और थैले को जमीन पर छोड़ते हुए खड़ा हो गया। उनके इरादे मुझे छोड़ने वाले लग नहीं रहे थे। मैंने सुलह की एक और कोशिश करते हुए कहा, आपको सारी बात मालूम नहीं। मैं वाकई मुसाफिर हूँ और गजनी खेल वाले मुझे आपका आदमी समझकर पकड़ कर ले गए थे, और इससे पहले कि मैं उनकी गलत फहमी दूर करके अपना सफर जारी रख पाता, आप लोगों ने उन्हें घेर लिया और मैं बेगुनाह फंस गया। उसके बाद गुज़श्ता रात वो घेरा तोड़कर निकल भागे। मैं भी उनके साथ था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जहरखंद लहजे में बोला, तुम्हारा कसूर ये है कि भागने का सारा मंसूबा तुम्हारा था और कल दिन भर तुम हमारे आदमियों को जख्मी करते रहे हो। तुम्हारी ही तरकीब से हमारे कई आदमी जान से गए हैं। उन्हें खबर देने वाला महाज पर नहीं गया था, वरना हमारा कल का मंसूबा कामयाब ना हो पाता। यकीनन उसे कल लड़ाई से लौटने वालों ही से मेरे बारे में मालूम हुआ था और अपने कर्म फरमाओं तक उसने फौरन सारी बात पहुंचा दी थी। मैंने सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने आपके किसी आदमी को जान से नहीं मारा। वो बोला, उन्हें टांगों और बाजुओं में गोली मारना नाकारा करना है। मैं भी तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस दोनों टांगों और बाजुओं में गोली मार दूंगा। ये कहते ही उसने क्लैशनकोफ मेरी जानिब सीधी की। उसकी क्लैशनकोफ सीधी करते ही मैंने हरकत करने का फैसला कर लिया। उसके तेवर देखकर वाज़े लग रहा था कि वो जो कुछ कह रहा था वैसा ही करना चाहता था। मैंने हाथ सर से बुलंद करते हुए कहा, अच्छा मेरी आखिरी बात सुन लो, उसके बाद जो मर्जी आए करना। मेरी बेबसी से लुत्फानंदोज होते हुए उसने क्लैशनकोफ की बैरल जमीन की तरफ झुकाई। सुनाओ।
उस वक्त तक मैं एक सरसरी नजर तीनों पर डाल चुका था। वो तमाम उसके अकब में खड़े थे और वो सबसे आगे खड़ा तमस्खराना अंदाज से मुझे घूर रहा था। हमारे दरमियान बस 2-3 कदमों का फासला था, बाकी तीनों उससे चंद कदम दूर थे। उन तमाम के अंदाज में बेपरवाही थी। उसकी क्लैशनकोफ का रुख नीचे की तरफ होते ही मैं जकन भरते हुए उसके करीब हुआ और इससे पहले कि मेरा इरादा उस पर जाहिर होता, मैंने क्लैशनकोफ की बैरल को पकड़कर उसके धाने का रुख खुद से मोड़ते हुए अपने घुटने को जोरदार अंदाज में उसकी टांगों के दरमियान उठा दिया। आह आह की आवाज के साथ वो नीचे झुका और मैंने एक झटके से क्लैशनकोफ उसके हाथ से छीन ली। ये सब कुछ इस सूरत से हुआ था कि वो तीनों हक्का बक्का खड़े रह गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने मुशाहिदा किया था कि इस इलाके में अक्सरियत ऐसे लड़ाकों की थी जो सिर्फ हथियार का इस्तेमाल ही जानते थे। जिस्मानी दावपेच से वो लोग नाबलद थे। अलबत्ता मुजाहिदीन के कैंपों में खाली हाथ लड़ने की तरबियत दी जाती है। दहशतगर्दों में भी इक्का दुक्का ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो हाथ पैर का इस्तेमाल जानते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत ही कम तादाद में मुझे टकराए थे। क्लैशनकोफ मेरे हाथ में आते ही मैंने उसका बट जोरदार अंदाज में घुटनों के बल झुके आदमी के सर पर मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसके साथ ही मैंने बैरल का रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। वो तीनों भी इब्तदाई झटके से संभल कर अपने हवासों में आए, लेकिन उन्होंने जरा सी देर कर दी। वो जब तक क्लैशनकोफ का रुख मेरी तरफ करते मैं ट्रिगर दबा चुका था। 2 बंदे टांगों में गोली खाकर चीखते हुए नीचे गिरे। तीसरे आदमी ने ट्रिगर दबाने के साथ ही पीछे की जानिब छलांग लगा दी। उसने क्लैशनकोफ ब्रस्ट पर सेट की हुई थी। अगर वो तेजी में दुरुस्ती न भूल जाता तो यकीनन आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। ट्रिगर दबाते ही चूंकि उसने पत्थर की जानिब छलांग लगाई थी, इसलिए बैरल का रुख मुझसे बाएं तरफ को हो गया था। उसके बावजूद मुझे बाएं बाजू में शदीद जलन का एहसास हुआ। उसकी जल्दबाजी में फायर किए गए ब्रस्ट में से एक भूली भटकी गोली मेरे बाजू का मिजाज पूछ चुकी थी। अचानक ढलान की तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। गोलियां मेरे दाएं बाएं लगी थी। अगर मेरे सामने उनका एक आदमी बेहोश न पड़ा होता तो इन गोलियों का निशाना मेरे जिस्म ने बनना था। मैंने फौरन खुद को जमीन पर गिराया और करीबी पत्थर के पीछे रिंग गया। मेरे बाएं बाजू में तो जलन हो रही थी, मगर बाजू ठीक ठाक काम कर रहा था। इसका साफ मतलब यही था कि गोली मेरे बाजू को छूते हुए गुजर गई है। अब उसी पत्थर को निशाना बनाया जा रहा था जिसके पीछे मैं छुपा था। ऊपर वालों से ज्यादा मुझे उस आदमी से खतरा था जो नाले ही में छुपा था। आड़ के दाएं जानिब से उस तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे एक क्लैशनकोफ की बैरल अपनी जानिब उठी नजर आई। उसका बाकी जिस्म पत्थर के पीछे गायब था। 1-2 छोटे छोटे ब्रश चलाकर वो मुझे अपने साथ उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा था, फकत क्लैशनकोफ पत्थर के पीछे से झलक रही थी। कोई चारा-ए-कार न देखकर मैंने क्लैशनकोफ के ऊपर निशाना साधते हुए ट्रिगर दबा दिया। उस फासले से निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गोली क्लैशनकोफ के फ्रंट हैंड गार्ड पर लगी थी। क्लैशनकोफ उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। मैंने फौरन क्लैशनकोफ का रुख ढलान की तरफ करते हुए सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया और ट्रिगर दबा दिया। 2-3 गोलियों के बाद ट्रेंच की आवाज ने मुझे क्लैशनकोफ के खाली होने की बुरी खबर सुनाई। यकीनन क्लैशनकोफ की मैगजीन भरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं तो चंद गोलियां ही फायर कर सका था। मेरी अपनी क्लैशन जरा फासले पर पड़ी थी। वहां तक जाने के लिए मुझे दुश्मन के सामने जाहिर होना पड़ता, जिसका नतीजा मौत की सूरत में भी जाहिर हो सकता था। टांगों पर गोलियां खाने वाले कराहते हुए अपनी जगह पर तड़प रहे थे। यकीनन उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें जान के लाले पड़ सकते थे। उसी वक्त नाले मोड़ से होने वाली फायरिंग की आवाज ने मुझ पर ये रूह फरसा इंकशाफ किया कि वहां पर दुश्मन की काफी पार्टियां मौजूद थी। वहां मजीद लेटना भी मौत को दावत देने के बराबर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लेना था और एक बार अगर मैं उनके हाथ चढ़ जाता तो मेरी जिंदगी की जमानत जब्त हो जाती। उस पत्थर से 20-25 गज दूर झाड़ियों का झुंड था। वहां तक पहुंचकर मैं अपने फरार में आसानी पैदा कर सकता था। झाड़ियों तक पहुंचने के लिए मुझे जल्दी करना थी, वरना दुश्मन के नजदीक पहुंचने के बाद ये मुमकिन न रहता। दुश्मन इसलिए भी दूर दूर थे कि उनके ख्याल के मुताबिक मैं मुसल्लाह था, जबकि मैं बगैर एमुनिशन के बिल्कुल बेदस्तुपा हो गया था। मैं अभी इस सूरत हाल से निकलने की जहनी वर्जिश ही कर रहा था कि बेहोश पड़े आदमी के जिस्म में हरकत हुई और वो सर झटकते हुए उठ बैठा। मेरी क्लैशनकोफ उससे 2-3 कदम दूर ही पड़ी थी। मैंने नेफे में उड़सा 30 बोर निकाल कर कॉक करते हुए हाथ में पकड़ लिया। होश में आते ही वो चंद लम्हे कनपटी मसलने के बाद जमीन पर हाथ टेकते हुए उठने लगा। उसी वक्त खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए मैं छलांग लगाकर पत्थर के पीछे से निकला और इससे पहले कि वो मुकम्मल खड़ा हो पाता, उसका दायां बाजू मरोड़ते हुए मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली थी। पत्थर के अकब में छुपा वो आदमी जिसकी क्लैशनकोफ को मैंने निशाना बनाया था, मुझे अपने साथी के साथ मसरूफ देखकर उसने पत्थर के पीछे से निकलकर अपनी क्लैशनकोफ उठाना चाहिए। बाएं हाथ से अपने असीर की कलाई थामते हुए मैंने दाएं हाथ में पकड़ा 30 बोर क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने वाले शख्स की तरफ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया, मगर गोली फायर नहीं हुई थी। इस तरह के मकामी असलहे का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बगैर किसी वजह के रुक जाता है। पिस्तौल को नीचे फेंक कर मैंने उसी लंबे आदमी को ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया।
उसके साथियों ने भी चंद हवाई फायर किए। मुझे निशाना बनाने की सूरत में उनके अपने आदमी को पहले गोली लगती। पत्थर के पीछे छुपे आदमी ने भी क्लैशनकोफ उठाकर मेरी जानिब तान ली थी, लेकिन मेरे सामने उनका साथी ढाल की सूरत में मौजूद था। एक हाथ से उसका मरोड़ा हुआ बाजू पकड़कर दूसरा बाजू मैंने उसकी गर्दन में डाला और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचता हुआ क्लैशनकोफ के करीब पहुंच गया। नीचे झुककर क्लैशनकोफ उठाने की सूरत में वो मेरी गिरफ्त से निकल जाता। मैंने अपना पांव स्लिंग में डालकर क्लैशनकोफ को धीरे से जमीन से उठाया। इस दौरान उसने मचलकर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा। उसके गले में डाले हुए बाजू के फंदे को मजीद कसते हुए मैंने उसे खामोश धमकी दी। किसी अक्खड़ से अक्खड़ आदमी को भी समझाने के लिए जबान से ज्यादा अमली धमकी काम आती है। उसे भी मालूम हो गया था कि हरकत करना उसकी गर्दन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। जिस्म ढीला छोड़ते हुए उसने ताउन का ऐलान करते देर नहीं की थी। क्लैशनकोफ हाथ में आते ही मैंने बैरल उसकी पीठ से लगाई और उसके गले से बाजू निकाल लिया। क्लैशनकोफ की सर्द बैरल गर्दन में पड़े हुए बाजू से भी ज्यादा डराने वाली थी। वो मेरे सामने बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया। उसका दूसरा साथी मुझे धमकियां देने लगा, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम गायब ना हुए तो इन दोनों के साथ लेटे नजर आओगे। मैंने जमीन पर पड़े जख्मियों की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी। उसने फौरन एक बड़े पत्थर की अकब में आड़ ली। मेरे पास वक्त बहुत कम था। देर होने की सूरत में उनके मजीद साथी पहुंच जाते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। इस लंबे आदमी को अपने सामने ढाल की तरह रख कर मैं उल्टे कदम पीछे हटने लगा। उसके साथियों को मेरी हिकमत अमली समझ में आ गई थी। उन्होंने मुझे धमकाने के लिए तेज फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी कोई भी गोली उनके साथी से इत्तिसाल किए बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के झुंड में घुसते ही मैं दुश्मन की तमाम पार्टियों की नजरों से ओझल हो गया था। अपने कैदी को मैंने घुटनों के बल बैठने को कहा। बगैर किसी लीतो लाल के वो घुटनों के बल बैठ गया। मैंने फौरन क्लैशनकोफ के बट से उसके सर की मजबूती का अंदाजा लगाने की कोशिश की। वो एक बार फिर मुंह के बल नीचे गिर गया। मैं मुड़कर भाग पड़ा। उनके ताक़ुब से पहले मैं वहां से दूर निकल जाना चाहता था। वो घनी झाड़ियां मेरी काफी मददगार साबित हो रही थी। 10-15 मिनट बाद ही मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। यकीनन उन्होंने अपने बेहोश साथी को तलाश कर लिया था। गजनी खेल वाली लड़ाई के बाद इस झड़प के दौरान भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि शलोबर के किसी आदमी को जान से न मारूं, क्योंकि हत्तुल वसा किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रगना चाहता था और इस कोशिश में मुझे खातिर खा कामयाबी हुई थी। गुज़श्ता रोज से लेकर अब तक शलोबर का कोई आदमी मेरे हाथों कत्ल नहीं हुआ था। अलबत्ता जख्मी होने वालों की तादाद 2 दर्जन के करीब पहुंच गई थी। नाले के दरमियान दरख्त मौजूद नहीं थे। झाड़ियों के झुंड चूंकि ढलान पर थे, इसलिए मुझे ढलान पर तिरछा भागना पड़ रहा था। फरलांग भर दूर मुझे उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। न जाने वो क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। इन आवाजों पर कान धरे बगैर मैं झाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ता जा रहा था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर नाले के दरमियान में पड़ी। उनके 9-10 आदमी नाले के बीचों बीच दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका इरादा मुझसे आगे बढ़कर उन झाड़ियों के जंगल को घेरने का था। अगर ऐसा हो जाता तो मैंने चूहेदान में फंस जाना था। एकदम रुक कर मैंने अपनी जगह पर पोजीशन संभाली, जहां से पूरा नाला मेरी नजरों के सामने था। उसके साथ ही क्लैशनकोफ को सिंगल राउंड पर सेट करते हुए मैंने सबसे आगे वालों की टांगों पर शिस्त लेकर मुसलसल 3 बार ट्रिगर दबा दिया। 2 आदमी मुंह के बल गिर पड़े और तड़पने लगे। बाकी एकदम बिखर कर दाएं बाएं पत्थर की आड़ में हो गए थे। उसके साथ ही उन्होंने अंदाजे से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 2-3 मजीद गोलियां जाया करके मैं करवट तब्दील करता हुआ एक झाड़ी की आड़ में पहुंचा और झुके झुके वहां से आगे बढ़ने लगा। उन्हें अभी तक पत्थरों की आड़ से निकलने की जरूरत नहीं हुई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैं खड़े होकर दौड़ पड़ा। किलोमीटर भर आगे नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था और उनके वहां तक पहुंचने से पहले मुझे अगले नाले में पहुंचना था, क्योंकि जल्द ही उन्हें यकीन हो जाना था कि मैं आगे बढ़ गया हूं और इस बार वो तेज रफ्तारी से नाला मोड़ तक पहुंच सकते थे। मेरे बाएं बाजू में हल्की हल्की जलन और अच्छा खासा दर्द हो रहा था। यकीनन गोली ने काफी गहरी खराश डाली थी। अपने बाजू की जिल्द पर मुझे खून की नमी भी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर बाजू पर पट्टी वगैरह लपेट सकता। बस इत्मीनान था तो इतना कि गोली बाजू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी और रगड़ खाते हुए निकल गई थी। नाले मोड़ के करीब पहुंचने तक मेरी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। किलोमीटर भर का फासला जो मैदानी इलाके में 10-12 मिनट में आसानी से तय हो जाता है और थकन भी महसूस नहीं होती, पहाड़ी इलाके में उससे दुगना वक्त लगाकर भी उतना फासला बमुश्किल तय हो पाता है। और उसके साथ मेरा सांस यूं फूला हुआ था जैसे मीलों की मुसाफत तय करके आ रहा हूँ। उस जगह पर 3 नाले आकर उस चौड़े नाले में मिल रहे थे। एक नाला दाएं तरफ से, दूसरा बाएं और एक नाला सीधा आकर इस चौड़े नाले में मिल रहा था। मरनाहगर नामी गांव को दायां नाला जाता था, लेकिन दाएं नाले में जाने के लिए मुझे वो चौड़ा नाला अबूर करना पड़ता, जबकि दुश्मन नाले में मौजूद था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। सीधा जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक तो उस नाले में झाड़ियां कम नजर आ रही थी,
दूसरा, इस नाले में जाते हुए मैं दुश्मन को दूर से नजर आ सकता था। जल्दी से फैसला करते हुए मैं बाएं तरफ के नाले में घुस गया कि उस वक्त मेरी तरजीह अपनी जान बचाना थी। मरनाहगर गांव को बाद में भी ढूंढा जा सकता था। बाएं नाले में मुड़ते ही मैं नाले के दाएं किनारे के साथ आगे बढ़ने लगा। एक खास फर्क ये पड़ा था कि उस जगह से चढ़ाई शुरू हो रही थी, क्योंकि पहले मैं उतराई में भागता हुआ आ रहा था। चढ़ाई में दौड़ना नामुमकिन था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के झुंड बतदरीज ऊंचाई की तरफ चले गए थे। मैं भी नाले में सीधा चलने की बजाय तिरछा होकर ऊपर की तरफ चलने लगा। फरलांग भर चलने के बाद ही मुझे अकब में फायरिंग की आवाज सुनाई दी, लेकिन फायरिंग का रुख मुतय्यन नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो मेरे जाने की समझ से आगाह नहीं थे और अंदाजे ही से फायर कर रहे थे। इस नाले के दोनों किनारों पर घनी झाड़ियों के झुंड मौजूद थे, जबकि सीधे नाले में भी झाड़ियां मौजूद थीं और वही झाड़ियां मुझे छुपने में मदद दे रही थी। मैंने कदम रोकते हुए एक झाड़ी की ओट से नाला मोड़ की जानिब निगाह दौड़ाई। वहां 15-20 के करीब मुसल्ला अफराद दिखाई दे रहे थे। यकीनन वो मेरे जाने की समत का तयन कर रहे थे। गो वहां से मुझे उनके तेवर तो नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मेरा अंदाजा यही था कि वो सख्त गुस्से में थे। वो मुझे नाकारा करने आए थे, इसकी बजाय अपने 3-4 आदमी जख्मी कर बैठे थे और इतने आदमियों के घेरे से एक बंदे का यूं आराम से निकल जाना उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो लंबा आदमी जिसे मैंने 2 मरतबा क्लैशनकोफ का बट मार कर बेहोश किया था, वो मुझे नुमायां नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि अगर मैं उनके काबू में आ जाता तो उस लंबे ने तो मुझे बगैर वजाहत सुने ही गोली मार देनी थी। मेरे देखते ही देखते वो 2 पार्टियों में तकसीम हुए। आधे सीधे जाने वाले नाले में घुस गए, जबकि बकाया उस नाले में आ गए जिसमें मैं मौजूद था। अलबत्ता दाएं मुड़ने वाले नाले को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो नीचे ही नीचे चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे वहीं छुपे हुए उनके आगे निकल जाने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद मैं वापस जाकर मरनाहगर जाने वाले नाले में घुसकर खुद को महफूज कर सकता था। इस तरह उनके ताकुब से मेरी जान छूट जाती और मेरी मंजिल भी खोटी न होती। लेकिन जब मैंने उस पार्टी को मजीद 3 हिस्सों में मुनकसिम होते देखा तो मुझे अपने मंसूबे में तरमीम करना पड़ी। उनमें से 4 आदमी नाले के बाएं किनारे की तरफ बढ़े और फैलकर ढलान पर चढ़ने लगे। 4 आदमी दाएं ढलान पर चढ़ने लगे कि जिस जानिब में छुपा हुआ था, जबकि बाकी नाले की तह में आगे बढ़ने लगे। उसके साथ दूसरी पार्टी के आदमी जो सीधे नाले में घुसे थे, उन्होंने अपनी 3 आदमी नाले मोड़ ही पर छोड़ दिए थे। गोया मैं किसी तरह अपनी तलाश में आने वालों की नजर में आने से बच भी जाता तब भी वापस नहीं जा सकता था। अपने मंसूबे पर मिट्टी डालते हुए मैं झाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ने लगा। उनकी नजरों में आने से बचने के लिए मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। अब आगे बढ़ने की बजाय मैं ऊपर चढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। 50-60 गज चलने के बाद एकदम चलगोजे के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इन दरख्तों की वजह से मैं ज्यादा तेजी से सफर कर सकता था, क्योंकि अब खड़ा होने के बावजूद मैं दूर से नजर नहीं आ सकता था। मैं पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ रहा था। बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं थी, जल्द ही मैं चोटी के करीब पहुंच गया था। चोटी से 50-60 गज नीचे ही दरख्तों का सिलसिला खत्म हो रहा था। पहले तो मैंने खतरे से बचने का सोचा और उन्हीं दरख्तों के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि दुश्मन की बुलंदी पर पहुंचने की सूरत में मैं दोनों जानिब से घेरे में आ जाता और उस वक्त किसी की मुझ पर नजर पड़ जाती तो मेरा वहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाता। ये ख्याल आते ही मैंने मोहतात अंदाज में बुलंदी की तरफ कदम बढ़ा दिए। छदरी छदरी झाड़ियों और इक्का दुक्का पथरीली चट्टानों की आड़ लेता हुआ मैं हद्दुल वसा कोशिश कर रहा था कि किसी की नजर मुझ पर न पड़ जाए। बदकिस्मती ये थी कि सुबह सवेरे ही मुझे दुश्मन का सामना करना पड़ गया था और इस वजह से दिन गुजरने में ही नहीं आ रहा था। अगर अंधेरा छा जाता तो मुझे मजीद सहूलत मिल जाना थी, फिर मैं दूर से किसी को नजर न आता और इस अंधेरे में पहाड़ी इलाके में एक आदमी को तलाश करना किसी बड़े इत्तेफाक ही के मरहूने मिन्नत हो सकता था और उमूमन ऐसे इत्तेफाकात ज़हूर पजीर नहीं हुआ करते। लेकिन अंधेरा छा जाने में अभी आधे दिन से ज्यादा वक्त पड़ा था और इतनी देर इन मूजियों की नजर से बचकर हरकत करना दुश्वार था। सबसे बढ़कर वो यहाँ के मकामी थे। सारा इलाका उनका देखा भाला था। वो मुझसे ज्यादा तेजी से इन पहाड़ों में सफर कर सकते थे और उन्हें सांस का मसला भी मैदानी इलाकों के लोगों की निस्बत कम पेश आता। मैं अपना सफरी थैला भी पीछे ही छोड़ाया था। अब मेरे पास जेबों में मौजूद नकदी, पिंडली से बंधे खंजर और क्लैशनकोफ के अलावा जरूरत का कोई सामान बाकी नहीं था। क्लैशन का एमुनिशन भी थैले में ही रह गया था। शलोबर कबीले से फायरिंग का तबादला होने की सूरत में मैं चंद गोलियों से कब तक उनकी पेशकदमी रोक सकता था। वो काफी तवील पहाड़ी थी और ऊपर पहुंचकर मैं काफी तेजी से हरकत करके किसी मुनासिब नाले या दूसरी पहाड़ी का रुख कर सकता था और जितना ज्यादा मैं दूर हो जाता मेरी तलाश में आने वालों का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता। इसका फायदा ये होता कि अगर इत्तेफाकन कोई पार्टी मुझसे टकरा भी जाती तो दूसरे उसकी मदद को बरवक्त नहीं पहुंच सकते थे और इतना मोम का पुतला मैं भी नहीं था कि 3-4 आदमियों के काबू फौरन आ जाता।
मैं मोहतात अंदाज में हरकत करता हुआ धीरे धीरे से चोटी के करीब पहुंचता जा रहा था। एक घनी झाड़ी के करीब पहुंचकर मैं लम्हा भर सांस लेने को रुका। वहां से चोटी तक 15-20 कदम का फासला बाकी था, लेकिन रास्ते में कोई नजरी आड़ मुयस्सर नहीं थी, जबकि सहारा लेकर मैं ऊपर पहुंच सकता था। लेकिन बुलंदी पर पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। नाले की तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे कोई नजर न आया कि वहां से ना तो नाले की तह नजर आती थी और ना नाले में मौजूद कोई शख्स उस जगह को देख सकता था। अलबत्ता मेरे पीछे ढलान चढ़ने वाले अफराद मुझे देख सकते थे। उसी तरफ नाले के दूसरे किनारे पर ढलान चढ़ने वालों की नजर भी उस जानिब उठ जाती तो उन्हें मैं नजर आ सकता था, क्योंकि नाले की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी। दिल ही दिल में खुदा को याद करते हुए मैंने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो थोड़ा सा फासला मैंने दौड़ कर तय करने की कोशिश की थी। गो बुलंदी पर दौड़ना करीबन नामुमकिन होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलने तो क्या उखड़ने लगता है, लेकिन चंद कदम लेने में कोई मुजायका नहीं था और मैं ऊपर पहुंचकर एक पत्थर की आड़ लेने ही वाला था कि मुखालिफ पहाड़ी की तरफ से तड़तड़ाहट की आवाज उभरी और बिला शक व शुबा इस फायरिंग का निशाना मेरी जात थी। बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं देख लिया गया था। गोली चलाने वाले का निशाना खता जाने के बावजूद मेरा मकसद पूरा नहीं पाया था। नजर आकर मैंने एक बार फिर उन्हें हदफ मुहैया करके अपने गिर्द घेरा डालने का मौका दे दिया था। बहरहाल मेरे पास सोग मनाने या सर पीटने का वक्त नहीं था। दूसरी जानिब उतरने की बजाय मैंने बुलंदी पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी 500-600 गज तवील थी। उसका रुख करीबन जुनूब मगरिब बन रहा था। फायरिंग की आवाज तवातुर से आना शुरू हो गई थी। गो अब मैं उनकी नजरों से ओझल था, लेकिन उनकी फायरिंग के बायस दाएं बाएं फिरने वाली तमाम पार्टियां उस जानिब मुतवज्जह हो गई थी। उसके साथ लाजमी बात है कि उन्होंने ये बात मुखाबरे पर भी दूसरी पार्टियों को बता दी थी। थकन महसूस करने के बावजूद मेरी टांगों में बिजली भर गई थी और मैं जल्द से जल्द वहां से दूर होकर किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां मेरी तलाश के लिए उन्हें दोबारा मुंतशिर होना पड़े। बाएं जानिब मौजूद नाला इस पहाड़ी के साथ साथ जुनूब मगरिब की जानिब मुड़ रहा था। यकीनन नाले की तह में मौजूद आदमियों ने सामने की तरफ आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करनी थी। अलबत्ता इस पहाड़ी के दाएं जानिब जो 2-3 नाले लग रहे थे, मैं उनमें से किसी नाले में उतर सकता था और मैंने ऐसा ही किया। एक नाला छोड़कर दूसरे के नजर आते ही मैं ढलान उतरने लगा। अब मेरे कदमों में फिर से तेजी आ गई थी। मैं बमुश्किल 1/3 ढलान उतर पाया था कि मेरे अकब में फायरिंग की आवाज सुनाई थी। वो चारों आदमी जो मेरे पीछे पीछे उस ढलान पर चढ़ रहे थे, ये मालूम होते ही कि मैं बुलंदी पर हूँ, उन्होंने ऊपर पहुँचते हुए देर नहीं लगाई थी। बहरहाल अब तक वो मुझसे दूर थे और इतने फासले से वो मुझे निशाना नहीं बना सकते थे। अपने कदमों में मजीद तेजी लाते हुए मैं हद्दुल वसा किसी आड़ को अपने अकब में रखकर आगे बढ़ता गया। नाले में उतरने के बाद ही मैं अगली चढ़ाई चढ़ सकता था। जो ही मैं नाले में उतरा, एक मर्तबा फिर अकब में फायर की आवाज सुनाई देने लगी। वो मुझे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दे रहे थे। सामने की पहाड़ी पर ज्यादा दरख्त नहीं थे, लेकिन उस पर चढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चाराकार नहीं था। नीचे उतरते वक्त एक और परेशान कुन बात मेरे मुशाहिदे में आई थी कि जिस नाले में मैं उतरा था वो उस सीधे नाले से टकरा रहा था जहां शलोबर कबीले वालों की दूसरी पार्टी मेरी तलाश में गई थी। इसलिए बजाय नाले में आगे बढ़ने के मेरा बुलंदी पर पहुंचना जरूरी था। इसलिए नाले में रुकने की बजाय मैंने बुलंदी का सफर शुरू कर दिया था। एक मर्तबा फिर मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन वो वक्त सांस बहाल करने का नहीं था। गजनी खेल कबीले के साथ हमदर्दी करना मुझे कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा था। शलोबर कबीले वाले गजनी खेलों पर आया हुआ गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे, या शायद उनकी निगाह में मेरा कसूर नाकाबिले माफी था। हालांकि अपने तई मैंने उनके किसी आदमी को मौत के घाट नहीं उतारा था, वरना बाजू या टांग पर लगने वाली गोली को सर में मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरी कोशिश ये थी कि किसी चट्टान, झाड़ी या दरख्त वगैरह की आड़ लेकर चलूं। उनके नाले में उतरने तक मैं क्लैशनकोफ की कारगर रेंज से दूर निकल जाना चाहता था, वरना नाले में खड़े होकर वो मुझे आसानी से निशाना बना लेते। ऊंचाई और नशेब में फायर करते वक्त भी किसी रफ्तार की कारगर रेंज बढ़ जाया करती है, लेकिन ये स्नाइपर का तरीकाकार है और ये हिसाब एक कुलिये के तहत किया जाता है। आम आदमी इस बात से वाकिफ नहीं होता। पूरी कोशिश के बावजूद मैं मतलूबा बुलंदी तक नहीं पहुंच पाया था कि वो भागते हुए नीचे आ रहे थे। मैं बमुश्किल 200 मीटर ऊपर पहुंचा हूँगा कि उन्होंने नाले में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। फायर की आवाज कानों में पड़ते हुए मैं फौरन नीचे लेटा और एक करीब पत्थर की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग के लिए तैयार हो गया। वो चारों बगैर किसी आड़ का सहारा लिए नाले के दरमियान में खड़े थे। मेरी क्लैशनकोफ का सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड पर सेट था। मतलूबा रेंज लगाकर मैंने शिस्त लेकर दरमियानी आदमी की टांग को निशाना बनाया। यूं भी उनके रुके होने की वजह से वो आसान हदफ की सूरत इख्तियार कर गए थे। ट्रिगर दबाते ही मस्कूरा आदमी नीचे गिर गया था। उसके साथ ही बाकी आड़ की तलाश में पहाड़ी की जड़ की तरफ भागे। उनके छुपने का तमाशा देखने की बजाय मैं बुलंदी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की जड़ में छुपने की वजह से मैं भी उनकी नजरों से ओझल हो गया था और जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो जाना था।
और मेरे गुमान के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वो नाले के दूसरे किनारे पर जाकर किसी पत्थर वगैरह की आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। इतनी देर में मजीद दूर हो गया था। दाएं बाएं पड़े पत्थरों से टकराने वाली गोलियों ने मुझे फौरन ही ये बावर करवा दिया था कि मैं अब तक उनकी रेंज ही में था। एक मर्तबा फिर मुनासिब आड़ के पीछे लेटकर मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। जख्मी आदमी अब तक उसी जगह पर मौजूद थे। जमीन पर बैठकर वो अपनी टांग पर कपड़ा लपेट रहा था, क्योंकि खून के बहाव को रोकने के लिए ये काम निहायत जरूरी था। मैं अगर चाहता तो आसानी से उसका अदम आबाद का टिकट कटवा सकता था, लेकिन अब तक मैं उन्हें जान से मारने से गुरेज कर रहा था। मैंने फायर करने वालों की पोजीशनों का जायजा लिया। 2 आदमी आड़ के ऊपर से फायर कर रहे थे और उनके सर में गोली मारना इतना मुश्किल नहीं था। तीसरा आदमी पत्थर की आड़ की दाएं जानिब से फायर पर शुरू था। मैंने उसी के कंधे पर निशाना साध कर फायर किया। उसकी चीख सुनते ही बाकी दोनों मुकम्मल तौर पर पत्थर के पीछे छुप गए थे। मैं वक्त जाया किए बगैर दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस मर्तबा मुझे निशाना बनाने की बजाय वो अपने साथियों को संभालने लगे। इस दौरान मैं उनकी रेंज से निकल गया था। बुलंदी पर पहुंचते ही मैंने 2-3 मिनट रुक कर सांस सीधा किया और फिर एक तरफ को बढ़ गया। दुश्मन ने ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। 4 में से 2 जख्मी हो गए थे और जख्मी साथियों को अकेला छोड़कर उन्होंने मेरा ताकुब करना मुनासिब नहीं समझा था। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने रेडियो सेट के जरिए अपने दूसरे साथियों को वहां बुला लिया हो। मेरी बला से कोई वजह भी थी। मुझे जल्द अज जल्द वहां से दूर निकलना था। बैठे बिठाए मुफ्त की मुसीबत गले पड़ गई थी। ना रोशन खान मुझे उस दिन सैलाब खान के पास ले जाता और ना मेरा सफर खोटा होता। इस हंगामे में फंसने पर अगर मेरा कोई फायदा होता तो बस इतना कि नौशाद गुल के जरिए मुझे थोड़ी बहुत मालूमात मिल गई थी, वो भी अधूरी सी कि वो ट्रेसी और एल्बर्ट ब्रूक के साथ एक बार गजनी खेल गया था। अब नामालूम वो मुस्तकिल वहाँ रहते भी थे या नहीं, या बस एक बार ही किसी वजह से गए थे। खैर कुछ भी था, अब मुझे एक बार तो गजनी तक जाना था। अगर एल्बर्ट मुझे वहाँ न भी मिलता तब भी शायद उसके बारे में कोई हल्का सा सुराग मिल जाता। एल्बर्ट से बढ़कर मुझे मेजर जेनिफर हिंसले को तलाश करना था। काफी उम्मीद थी कि इस मामले में वो मेरी मदद जरूर करती। गो इस बारे में वो गुज़श्ता मुलाकात में सरसरी सी माजरत कर चुकी थी, मगर उस वक्त मैंने उस पर इतना जोर भी नहीं दिया था। ये भी मुमकिन था कि वो वापस लौट चुकी होती। बहरहाल ये बात की बातें थी। उस वक्त तो मुझे जान बचाने का मुश्किल मरहला दरपेश था। शलोबर कबीले के लोग पीरे तस्मा पा की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरे ताक़ुब में आने वाले गो उस पहाड़ी के नीचे ही रुक गए थे, मगर अभी तक मैं खतरे की हुदूद से नहीं निकला था। पहाड़ी आगे जाकर एक दूसरे बुलंद पहाड़ से मिल रही थी। दरमियान में कोई नाला वगैरह भी नहीं आ रहा था। दूसरी पहाड़ी की इंतहाई बुलंदी पर मुझे बर्फ की सफेदी नजर आ रही थी। मेरे पाँव में उस वक्त स्पोर्ट्स शूज थे। गुलगारे के वालिद शमरेज खान के बूट मेरे सफरी थैले में ही रह गए थे। एक बार तो मैंने ऊपर न चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बर्फ की वजह से अपने साथ पेश आने वाला हादसा मुझे भूला नहीं था। लेकिन फिर ये सोचकर कि मैंने कौन सा वहाँ रहना है, उस बुलंदी को उबूर करके आगे गुजर जाऊंगा, ये सोचते ही मेरे कदम एक बार फिर बुलंदी की जानिब बढ़ गए। काफी मुश्किल चढ़ाई थी। मुझे सुबह से मुसलसल कभी दौड़ना पड़ रहा था और कभी चढ़ाइयाँ चढ़ना पड़ रही थी। ऐसी सूरत हाल में थकन होना अचंभे की बात नहीं थी। अलबत्ता ऐसे हालात में जीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी तक मुझ में काफी जान मौजूद थी और मैं इतना नहीं थका था कि गिर पड़ता। वहाँ निस्फ बुलंदी तक दरख्त मौजूद थे। जूं जूं मैं बुलंद होता गया, तेज हवा के साथ सर्दी भी बढ़ती गई। गो चढ़ाई चढ़ते हुए ज्यादा मुशक्कत की वजह से पसीना आ जाता है और सर्दी कम ही लगती है, मगर इंसान को सर्दी के बढ़ जाने का एहसास जरूर हो जाता है। घड़ी देखने पर सुइयां एक का हिंसा उबूर करती नजर आईं। मुझे दौड़ते भागते नशेब फराज उबूर करते करीबन 5.5 घंटे हो रहे थे, क्योंकि गजनी खेल से मैं सुबह 8 बजे के करीब रवाना हुआ था। मजीद आधे घंटे बाद मैं ऊपर पहुंच गया था। चंद लम्हे मैं सस्ताने बैठा, लेकिन ठंडी हवा मेरा मिजाज पूछने लगी। आराम का इरादा तर्क करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब नीचे उतरने से पहले मैंने पीछे मुड़कर निगाह दौड़ाई। हद निगाह तक पहाड़ी सिलसिले नजर आ रहे थे। मेरे पास दूरबीन मौजूद नहीं थी, वरना मैं अपने दोस्तों की हरकत देखने की कोशिश जरूर करता। नीचे उतरते वक्त मेरी रफ्तार काफी तेज थी। 20-25 मिनट में मैं दूसरी जानिब मौजूद नाले में पहुंच गया था। नाले में बहता पानी देखकर मुझे याद आया कि सुबह से मैं पानी नहीं पी सका था। हाथों का ओक बनाकर मैं छोटे बड़े पत्थरों के दरमियान जारी शफाफ पानी से लुत्फानंदोज होने लगा। खूब सेर होकर ठंडा पानी पीने के बाद मैं नाले ही नाले में आगे बढ़ गया। बुलंदी पर चलने वाली तेज हवा वहाँ बिल्कुल हल्की हल्की महसूस हो रही थी। उस नाले का रुख जुनूब मगरिब की तरफ था। नाले के बाएं किनारे पर झाड़ियों का घना झुंड था, जो बुलंदी की तरफ बतदरीज छदरा छदरा होता गया था। अलबत्ता दाएं जानिब इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए मैं मुनासिब रफ्तार से चल रहा था, लेकिन सुकून शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मैं नाले मोड़ से 100-150 गज ही दूर था कि मुझे 6-7 आदमी मोड़ मुड़कर उस जानिब आते दिखाई दिए। ठिठक कर रुकते हुए मैंने फौरन करीबी झाड़ी की आड़ ली, मगर मेरी तेजी किसी काम नहीं आई थी।
उन्होंने मुझे देख लिया था और बगैर सेकंड जाया किए उन्होंने क्लैशनकोफों का रुख मेरी जानिब करते हुए फायर खोल दिया। एक बार फिर मेरी दौड़ शुरू हो गई थी। चढ़ाइयां सर करना उस दिन मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ मैंने हाथों में पकड़ ली थी। अगर वो उसी तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहते तो मुझे जल्द ही आ लेते। ये सोचते ही मैंने रुकते हुए उनकी पेशकदमी में रुकावट डालने के लिए 3-4 गोलियां फायर की। अपने जख्मी साथी उन्हें नहीं भूले थे। वो फौरन पत्थरों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग करने लगे। मेरे पास एमुनिशन न होने के बराबर था। मैं उनके हर फायर का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मजीद गोलियों की बचत करते हुए मैंने फायर बंद किया और झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही फायरिंग रुकी, मैं झाड़ियों की आड़ से निकलकर एक पत्थर के पीछे लेटा और नाले की तरफ देखने लगा। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। उन्हें चंद कदम लेने देने के बाद मैंने एक गोली फायर की, लेकिन जिस जगह से मैं फायर कर रहा था वहां से लेटकर उन्हें निशाना बनाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता गोली चलने की आवाज ने उन्हें बदहवास होकर लेटने पर मजबूर कर दिया था। उम्मीद थी कि वो इतनी जल्दी उठने की हिम्मत न करते। अलबत्ता लेटे लेटे उन्होंने फायर जरूर खोल दिया था। मैंने रेंगते हुए करीबी झाड़ी की आड़ ली और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये एक तवील और लंबी ढलान थी जो बतदरीज ऊपर को उठती गई थी। नक्शाबीनी की इस्तिलाहात में ऐसी ढलान को पहाड़ का बाजू कहते हैं, यानी पहाड़ की वो शाख जिसकी बुलंदी बतदरीज कम होकर जमीन से मिल जाए। 20-25 कदम ऊपर जाते ही मुड़कर देखने पर वो मुझे हरकत करते नजर आए, मगर अब वो झाड़ियों के करीब पहुंच चुके थे और मेरे गोली फायर करने पर वो जमीन पर लेटकर आड़ लेने की बजाय झाड़ियों की आड़ लेने की कोशिश करते। मैंने गोली जाया करना मुनासिब न समझा और कदमों में तेजी पैदा कर दी। यकीनन झाड़ियों की आड़ लेते ही उन्होंने भी अपनी रफ्तार तेज कर देना थी। मकामी होने की वजह से वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी से पहाड़ी चढ़ सकते थे, मगर मेरी मिसाल उस वक्त ऐसे हिरन किसी हो गई थी जो जान बचाने के खौफ में वो चौड़ी खाई भी फलांग जाता, जिसे उसका ताकुब करने वाला ताकतवर शेर उबूर नहीं कर सकता था। इक्का दुक्का फायर की आवाज मेरे कानों में तसलसल से आ रही थी। यकीनन वो घनी झाड़ियों को फायर के जरिए छान रहे थे। किसी झाड़ी में छुपने की तजवीज भी मेरे ज़ेरे गौर थी, लेकिन उनके घनी झाड़ियों पर फायर करने ने मुझे इस तजवीज पर अमल करने से बाज रखा था। मुख्तलिफ मकामात से उठने वाली फायरों की आवाज से मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी कि वो फैल कर आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों का झुंड ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं निभा सका था। मैं इसी सूरत में बच सकता था कि उनके झाड़ियों के जंगल से निकलने से पहले बुलंदी पर पहुंच जाता। जल्द ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से आगे इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। मैंने रफ्तार मजीद तेज कर दी, मगर मैं ज्यादा देर अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया था। मेरा दिल जैसे हल्क के रास्ते बाहर आने को तैयार हो गया था। मजबूरन मुझे भागना तर्क करना पड़ा। लम्हा भर रुक कर मैंने अपना सांस बहाल किया और फिर तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगा। मैं बमुश्किल 100-120 गज ही ऊपर पहुंचा हूंगा कि एक मरतबा फिर तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। चंद कदम के फासले पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसकी आड़ लेने के लिए मैंने रफ्तार बढ़ाई, मगर उससे पहले मुझे यूं लगा जैसे मेरी दाईं रान में कोई अंगारा घुस गया हो। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। अपने हाथ सामने टेकते हुए मैंने खुद को ज्यादा जख्मी होने से बचा लिया था। वहां से रेंगते हुए पत्थर तक जाना नामुमकिन था। कोशिश करके मैं सीधा हुआ और झुककर पत्थर की जाने बढ़ा। मेरी दाएं टांग से बहुत तेजी से खून बहना शुरू हो गया था। पत्थर के करीब पहुंचने तक मुझे एक और झटका लगा। इस मर्तबा गोली मेरी दाएं पिंडली का गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। बाएं पांव पर जोर देते हुए मैंने एक झटका लिया और पत्थर के पीछे पहुंच गया। आड़ में जाते ही मैंने बगैर वक्त जाया किए गले से लिपटा मफलर खोलकर अपनी रान पर लपेट लिया। गोली रान के अंदर ही रह गई थी, मगर उस वक्त गोली निकालने से ज्यादा खून के बहाव को रोकना जरूरी था। रान पर कसकर मफलर लपेटने के बाद मैंने खंजर निकालकर अपनी कमीज का दामन फाड़ा और उसे 2 टुकड़ों में बांटकर पट्टी की शक्ल देते हुए पिंडली पर लपेटने लगा। पहले पहल गोली का जख्म इतनी तकलीफ नहीं देता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म में दर्द और जलन बढ़ती जाती है। खासकर जिस जख्म में गोली अंदर ही रह जाए वो ज्यादा तकलीफ देता है। दोनों जख्मों पर पट्टी बांधने के बाद मैं नीचे की तरफ मुतवज्जे हुआ। यकीनन दुश्मन को मालूम हो गया था कि मुझे गोली लग चुकी है। 3 आदमी बड़ी तेज रफ्तारी से ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आ रहे थे। सबसे आगे वाले के सर का निशाना लेते हुए मैंने सांस रोका और ट्रिगर दबा दिया। बस बहुत रियायत हो गई थी। मेरी जान छोड़ने पर वो यूं भी आमादा नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि अब तो सचमुच मुझे जान के लाले पड़ गए थे। वो उछल कर पीछे को उल्टा और नीचे लुढ़कने लगा। उसके साथ आने वाले फौरन नीचे लेट गए। उसके साथ उन्होंने मूसलाधार फायर खोल दिया। मैं उस पत्थर के पीछे महफूज था। अलबत्ता उनकी गोलियों से बचने के लिए मुझे अपना सर भी आड़ के पीछे करना पड़ गया था। दोनों ने पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। जो ही उनका फायर रुका, मैंने एक पत्थर की दाएं जानिब से क्लैशनकोफ का धाना निकालकर शिस्त साध ली। एक आदमी को तो पत्थर की आड़ मिल गई थी, दूसरा यूं ही लेट गया था।
उसके साथ ही उसने ये बेवकूफ़ी भी की थी कि कोहनियां टेक कर दुरुस्त फायर करने के लिए अपना सर जमीन से बुलंद किया था। उनकी 2 मैगजीनों के जवाब में मैंने एक और गोली फायर कर दी। हदफ ने उठा हुआ सर अपनी क्लैशनकोफ पर टेक दिया। माथे में पेवस्त होने वाली गोली ने उसे ज्यादा तड़पने का मौका नहीं दिया था। इतनी देर में पत्थर के पीछे आड़ लिए हुए आदमी ने मैगजीन तब्दील कर ली थी। अपने साथी का अंजाम देखते ही बदहवासी में उसने एक बार फिर ट्रिगर यूं दबाया कि उंगली उठाना उसे भूल गया था। मैगजीन ज्यादा देर तक गोलियां फराहम नहीं कर सकती थी। ब्रस्ट की सूरत फायर होने वाली 30 गोलियां खत्म होने में वक्त ही कितना सर्फ होता है। ज्यादातर गोलियां उस पत्थर से टकराई थी जो मुझे आड़ मुहैया किए हुए था। कुछ दाएं बाएं जमीन में लगकर गर्द उड़ाने का सबब बनी थी। मैं उसके फायर के रुकने का मुंतजिर था। जो ही उसका फायर रुका, मैं एक बार फिर पत्थर की आड़ के दाएं जानिब से उस तरफ झांकने लगा। वो पत्थर के अकब में बेहिस लेटा था। मेरे ख्याल में वो मैगजीन तब्दील कर रहा था, मगर मिनट भर बाद जब उसकी जानिब से फायर ना हुआ तो मुझे शक हुआ कि उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। उसी वक्त मुझे दरख्तों के झुंड से उनके बाकी 4 साथी आगे बढ़ते नजर आए। यकीनन वो अपने साथियों के अंजाम से बेखबर थे, तभी तो यूं बेफिक्री से आगे बढ़ रहे थे। वो भी चूंकि मेरी तरफ मुतवज्जे था, इसलिए उसे भी अपने साथी नजर नहीं आए थे, वरना वो उन्हें जरूर मुतनब्बे करता। मैंने फौरन क्लैशनकोफ की बैरल का रुख आने वालों की तरफ मोड़ा। मेरा इरादा कम से कम 2 आदमियों को निशाना बनाने का था। दरमियान वाले आदमी के सर का निशाना लेते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया। अपने पहले साथी की तरह वो उछल कर पीछे गिरा। बाकी तीनों ने फौरन आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में मैं एक और बार ट्रिगर दबा चुका था। उनका चौथा आदमी भी मुझे मारने की हसरत लिए पहले 3 वालों के पास पहुंच चुका था। क्लैशनकोफ के ऑटोमेटिक होने ने मेरे काम को आसान बना दिया था। बचने वाले दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। उनके इस्तरारी फायर से घबराकर उनके आगे लेटा हुआ साथी घबराकर बाआवाज़ बुलंद उन्हें फायर से मना कर रहा था, क्योंकि वो उनके और मेरे दरमियान लेटा हुआ था। उन्हें मना करते करते वो उस पत्थर की ऊंचाई का हिसाब नहीं रख पाया था जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। उसकी खोपड़ी का अकबी हिस्सा पत्थर के ऊपर से छलका और मुझे बस इतना ही हदफ दरकार था। 100 गज से चलाई हुई क्लैशनकोफ की ताकतवर गोली ने खोपड़ी के अकब से घुसकर उसे दुनिया की हर फिक्र और अंदेशे से दूर कर दिया था। मरने से पहले उसने बचने वाले दोनों साथियों को मरने वालों के अंजाम से बाखबर कर दिया था। टांगों और बाजुओं में लगने वाली गोलियां अब सर और माथे में पेवस्त होना शुरू हो गई थी। अचानक उनमें से एक आदमी ने उठकर नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। यकीनन वो खौफजदा हो गया था, लेकिन अब चाहे वो खौफजदा होकर चाहे किसी मकसद से भागे, मैं उन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। वो बमुश्किल 3 ही कदम ले पाया था। उससे आगे गोली ने उसे जाने की इजाजत न दी। उसके तड़पते हुए जिस्म को एक बड़े पत्थर ने नीचे लुढ़कने से रोका। अब हम 2 बच गए थे। मुमकिन था कि उसे मजीद साथियों की कुमक मिल जाती, मगर फिलहाल वो भी अकेला था। अपने आखिरी साथी के हलाक होते ही उसने भी अपनी क्लैशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करते हुए छोटे छोटे ब्रस्ट मेरी जानिब फायर करने लगा। मजबूरन मुझे पत्थर के पीछे सर छुपाना पड़ा। अचानक उसके फायर से मुझे महसूस हुआ जैसे वो खड़ा हो गया हो। उसके साथ ही उसका फायर आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगा। यकीनन वो भागने की कोशिश में था और इस मकसद के लिए वो मुझे सर उठाने नहीं देना चाहता था। वो हर ब्रस्ट 3-4 गोलियों का फायर कर रहा था। मैं उसके फायर होने वाले ब्रस्ट गिनने लगा। 7वें 8वें ब्रस्ट पर मैंने रिस्क लेते हुए पत्थर से झांका। वो एक घुटना जमीन पर टेके नई मैगजीन लगा रहा था। अगर मुझे पत्थर से झांकने में 2 सेकंड भी देर होती तो वो दोबारा फायर कर चुका होता। जब मैंने झांका उस वक्त वो क्लैशनकोफ को कॉक कर रहा था, जबकि मेरी क्लैशनकोफ पहले से कॉक थी और यकीनन वो मुझसे तेज रफ्तार फायरर नहीं था। नई मैगजीन से गोली चलाने की हसरत दिल में लिए वो अपने साथियों से जा मिला। आखिरी दुश्मन के मरते ही मैंने अपना सर पत्थर पर टेक दिया। एकदम मुझे अपने जख्मों में होने वाली तकलीफ का एहसास होने लगा। मुझे निहायत नागुफ्ताबे सूरत हाल का सामना था। मेरी दाएं टांग में 2 गोलियां लगी थीं। पट्टी बांधने के बावजूद खून रिस रहा था और पूरी टांग जैसे फोड़ा बनी हुई थी। ऐसी हालत में पहाड़ी पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अलबत्ता बहुत ज्यादा हिम्मत करके नीचे उतरने की कोशिश की जा सकती थी। क्लैशनकोफ की मैगजीन उतार कर देखने पर मुझे फकत 2 गोलियां नजर आईं। ये 40 राउंड वाली मैगजीन थी। गोया 38 गोलियां मैं फायर कर चुका था। मैगजीन लगाकर मैंने सेफ्टी लगाई और क्लैशनकोफ का बट डंडे की तरह नीचे लटकाकर उसके सहारे खड़ा हो गया। मेरी टांग में इतना शदीद दर्द उठा कि कराहे रोकने के लिए मुझे सख्ती से होंठ भींचने पड़े। लम्हा भर दर्द को सहारने के बाद मैंने उतराई में कदम बढ़ा दिए। चंद कदम लेने के बाद ही मैं बेदम होकर बैठ गया। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दाईं टांग जैसे मफलूज होती जा रही थी। मैं दाईं टांग को नीचे लगाने की बजाय बाईं टांग पर कूदता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। अचानक मुझे अकब में आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 4 मुसल्लह अफराद ढलान से नीचे आते दिखाई दिए।
मेरे पास क्लैशनकोफ में फकत 2 गोलियां बाकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आदमी सबसे पहले मेरी गोली का निशाना बना था, उसके मैगजीन में गोलियां मौजूद होनी चाहिए थी। वो वहां से थोड़े ही फासले पर पड़ा था। मैं इस काबिल नहीं था कि तेजी से हरकत करता, लेकिन अब जिंदगी मौत का मसला बन गया था। मैंने तेजी से हरकत करने की कोशिश की और 2-3 कदम लेते ही मेरा बायां पांव एक छोटे से पत्थर के ऊपर आकर फिसला। मैं मुंह के बल गिरा और उसके साथ ही लुढ़कते हुए नीचे जाने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरी दाईं टांग पर कोई हथौड़े मार रहा हो। कोशिश के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। शायद मेरी मुश्किल एक पत्थर की चट्टान ने हल कर दी। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त तक मैं अपने हवास खो चुका था, और ऐसे वक्त में जब दुश्मन सर पर पहुंच चुका हो, बेहोश हो जाने का मतलब जिंदगी से हाथ धो लेना है। मेरी सारी कोशिशें और तगोदो रायगां गई थी।